Hello, good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you all doing? We're meeting after so many days today. Would you like to share how are you guys feeling? And what have you been up to for the past 5 days? Okay, I will nominate Faisal, you wanna start? You wanna start us off? You wanna share what were you doing for the past 5 days that I was not here? Okay, Shivani, आपको share करना है? क्या किया 5 days when I was not here? Teacher, Yes, Faisal. I am going tuition in Padai Oh, you're going for tuitions? That's very nice. Friday. Oh, 5 days. Nice. And Zainab, is she also going with you? Yes. All right. All right. All right. You guys done with all the exams now? Okay, everyone has their video switched off. Can I request everyone to switch it on, please, before we start? Thank you, Abhishek. Thank you, Riya. Thank you, Amrita and Raj. Thank you, Shashwat. Waiting for everyone to switch on their videos. Thank you, Abhishek. Thank you, Ms. Khan. Please keep your videos on, everyone. I'll wait till everyone switches on their video. Jayashree, Shreya, hi. Can you switch on your video? Khushnuma, Prateek, Amrita, Raj, Asif. It's been so long. I want to see all your faces. Yeah, thank you, Asif, for that. All right. Amrita and Raj, Khushnuma and Prateek. Can you also switch on your video? Thank you, Amrita. Khushnuma, can you switch on your video? Is it possible for you? Thank you, Khushnuma. Amrita, keep your video on, please. Didi, I am in chat, then it is off. Say that again, please. I am writing my feeling on chat, then it is. Okay, then it's getting off. All right. Wait a second. Right after a minute, I'll give you time to do that. All right. Hello, everyone. Hi. 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 What have you been up to? Tell me now. Before we start, let's catch up. What has been going on for the past 5 days? Teacher, आप तो दिख ही नहीं रहे. Swap करो screen को. फिर दिखेगा maybe. Yes. Yeah, I think I went on vacation on Friday. Friday was a holiday. Then you had Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Yeah, Amrita and Rhea raising hand. Yes, Amrita, tell me. In past 5 days, I was missing you, and you were in a very serious break. Like I send you message, then there is your net is also not on. Then I was missing, and I was file Mrs. teaching some very nice topics, and which Yeah. I get bored in history, but in 7th standard I got very interested. You got very interested. Yeah, she's teaching in a very nice way. I agree. Yeah, it was a very serious break, as Amrita said. I had switched off my phone. So मेरा phone switch off था for the 5 days. So I was not on call or on WhatsApp or Instagram or Facebook, anything. I had completely switched off because I felt I needed that time for myself. Since this lockdown started, I was continuously on the phone pure time, 24/7, talking to so many people all the day, even on Sundays. So I felt I needed that break. That's why I made it such a serious break. Ria, would you like to share? What were you doing? Miss all the day teacher, file miss teachers
She gives us homework, maths, Yeah. and English. We study about pronouns You studied pronouns. Very nice. Yes. and So and yeah, adjectives. and adjectives. All right. So Payal Miss in English will teach you writing and grammar. I'll be teaching you reading comprehension. Okay. RC. Okay. Abhishek, what about you? What were you doing? Any Abhishek can answer. All right. No one wants to answer. Okay, Riya writes. Okay, now you can go to the chat window and write. How are you feeling? Okay, Riya has written. She's feeling very happy because her birthday is coming. All right. When is your birthday, Riya? Miss, it is tomorrow. Oh, it's tomorrow. Nice, nice. We'll celebrate in class. Morning में someone remind me 9 o'clock class में someone remind me that it's Riya's birthday. Okay, we'll celebrate. All right, Abhishek is feeling happy. Kushnuma is feeling happy because her father's birthday is approaching. Very nice. Muskan writes she's feeling very happy because you are coming. Oh, thank you, Muskan. Even I'm very, very happy to meet all of you guys. Seriously, even I was missing all of you. Uh, I had nothing to do, so I was reading a lot. I finished 2 books and 2 TV series. I was at home only because lockdown is on and it's not safe to go out. So even I was home, but I was reading and watching and all that. All right, Amrita and Raj wrote they're feeling excited because Amrita says she'll get a reply from me. Definitely, Amrita, I'll reply. I have a lot of messages from everyone, so I will reply after the class. I'll go through them. Take me some time to do that. Asif wrote he's very happy because Mumbai Indians won the cricket match yesterday. Yes, yes, I know. All right. टीचर Wrote yes, Abhishek. टीचर लॉकडाउन 15 को खुल रहा है क्या स्कूल ऑल्सो So Abhishek, it's happening in the phases. मतलब it's not same throughout the country. पूरी country में same नहीं है. For example, कुछ towns में and villages में जहाँ पे cases बहुत कम है, वहाँ पे they will open. But like city like Mumbai is the most densely populated city in India. यानी कि एक area में कितने लोग रहते हैं उसको डेंस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन रूम. इन वन रूम हाउ मेनी पीपल स्टे? सो यू मस्ट हैव नोटिस योर होम इन मुंबई इज स्मॉल compared to your home in a villages houses are bigger, right? So dense जो भी areas and cities are densely populated वहां पे वायरस के केसेस ज्यादा है, right? तो वहां पे नहीं खुल रहा है. So our school is not opening because we live in Mumbai, but in places जहाँ पे कम केस मतलब केसेस नहीं है या फिर बहुत कम केसेस है वहां पे ओपन हो जाएगा अभिषेक. इट्स लाइक दैट. ठीक है. Um, so I don't know when our schools will open, but from what I can see, this year it's not opening till December. I don't think schools will open. So we will be studying virtually only in online classes as we are doing. This is your school, your new school. And by the time vaccines come and pandemic gets over, they are saying it will be end of next year. That is December 2021. That is more than 14-15 months from now. So we need to get used to this, what is happening. They might open schools in January, but agar open hota hai, to I'm pretty sure you will all not be coming together to school. Only few students will come every day because we have to maintain distance from each other, right? Social distancing otherwise will not be possible. So yeah, let's see. We have new responses. Ms. Barod, he's very, very good today because he can see me. Oh, I'm very happy to see you as well, Ms. Ba. Krishnama wrote she's happy because Mansimis came back from leave. I'm also very happy, Krishnama. Okay, so Jayashree wrote excited because my small younger sister's birthday is on 16th October and it's approaching fast. Yes, very, very nice.
Thank you so much for sharing all these. Let's start the class. Yes, Shashwat, we might have to. It says like she's happy because she can see me today and learn my subject. All right, Artsy, I'm also very excited. So we'll be starting geography, everyone. What chapter were we on in geography? We did it last week. We started the new chapter. We did it for 2 days. Anyone remembers? याद नहीं है? No one remembers. What chapter were we doing? Yes, Shreya. Yes, air pressure. Remember, we were studying about air pressure. I made a drawing also in which I placed one man on the mountain, then climbing mountain, then on the sea level and underground, and I asked you, kahan pe air pressure zyada hoga, kam hoga? Remember that? Yeah, we were. And teacher, 2 balloons also. Yes, miss. Haan, Shreya? 2 balloons also. Yeah, the balloon experiment also, when we saw that air has weight through balloon experiment. Yes, very important. So today, now, okay, let me share the PPT. I've just made the PPT abhi. Yeah, let me share it with you. Okay, so how we will do this is, in the class today, you will not be writing a lot of things, okay? Okay, 1 second, I can't see you. Okay, so you won't be writing a lot, but Amrita, just 1 second. You will be understanding and talking with me a lot. ठीक है? हम आज जो भी आपको पढ़ना है वो आप मेरे को पढ़ाओगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी. I will just ask you questions. You will use your critical thinking. You remember critical thinking? So you will use your critical thinking and creativity to answer questions. ठीक है? You will use your brain to answer. तो आप आंसर करोगे एंड देन वी विल सी एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, कि आपने आंसर सही किया कि गलत किया. एंड देन आई विल गिव यू डेफिनेशंस इन द पीपीटी. आफ्टर दिस क्लास यू विल हैव टू राइट इट डाउन. ठीक है, ऑल द डेफिनेशन, ऑल द नोट्स. सो वो यू हैव टू डू एज होमवर्क टुडे. अंडरस्टूड? सो इन द क्लास we'll only have a discussion, we'll only be talking and understanding the concept. And at the end of the class, I will send this PPT in the school group and you will have to write the notes. जो भी आपने समझा और जो भी presentation में बना हुआ है, लिखा हुआ है, that you have to draw and write. Understood how we are going to do? Okay. Can someone tell me, Amrita, just 1 second. Can someone tell me why we are doing it this way? Yes, Arsia. Because we need to finish the air pressure chapter quickly, and if we write it with that, so we will not understand also, and we will take a lot of time. Okay, yeah, time is one factor, time is one reason, but there is another very important reason. Ria? For understanding us. Yeah, that's the most important one, so that you understand. Okay, there is still one thing missing. Amrita, you want to answer? Your hand is also raised. I want to ask something else. Acha, it's because of that. Okay, yes, just let me give this answer, then Amrita, you can ask. Okay, all right. From now on, we will be studying like this only. You will be teaching me, and it will not be I will be teaching you. It will not be like that. And this is because I'll tell you what. So I was reading this book, okay? I told you, in the leave, in the vacation, I read books. And there's this conference going on. It started on Monday and it's till 9th, 5th October, so 9th October, wherein leaders in education sector and everyone are coming together and speaking about different topics on education. Okay? So it's not open to students, but there are few sessions जिसमें students, especially from KER, students who are part of KER are coming and talking about it. So I will be sharing link of those sessions with you. Okay, so you can also attend later. But what I learned was, look, so till last century जो jobs होते थे market में वो कैसे होते थे? उसमें कुछ फिक्स चीजें दी हुई होती थी, एक लिस्ट होता था कि ऐसे 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 काम करना है,
एंड लोग जॉब्स में जाते थे और उसको बस फॉलो करना होता था, खुद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था, बस फॉलो करना होता था और चेक करना होता था कि वैसी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है. नाउ द न्यू जॉब्स दैट आर कमिंग अप which you will all be doing, ठीक है, are not like that. They are not like कि बस एक कोई लिस्ट है उसको बस फॉलो करना है. नहीं, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा खुद से. that are the new jobs that are coming. जो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज है ही नहीं, उसको क्रिएट करना होगा, उसको बनाना होगा. फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग अ न्यू वेबसाइट और राइटिंग कोड ऑफ अ न्यू ऐप. एक एप्लीकेशन, जो एप्स आप देखते हो इतने सारे मोबाइल फोन्स में, मेकिंग दोज एप्स, दोज आर द काइंड ऑफ जॉब्स दैट विल बी कमिंग अप. टू डू ऑल दोज न्यू काइंड्स ऑफ जॉब्स जो अब आने वाले हैं मार्केट में, उन जॉब्स को करने के लिए यू नीड व्हाट? यू नीड थिंकिंग एबिलिटी. आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी. इट विल नॉट बी कि आपको कोई सब आंसर दे देगा ना आपने कर लिया. इट विल नॉट बी लाइक दैट. ऐसे आप नहीं कर पाओगे. सो राइट नाउ, अभी तक कैसे पढ़ाई करते थे? अभी तक पढ़ाई करते थे कि टीचर क्वेश्चन देती है, आंसर देती है और हम आंसर लिख के आ जाते हैं याद करके. सो वो कैसे हेल्प होता था? जब वो लिस्ट होती थी ना, उसमें आपको बस वो याद करना होता था और वो फॉलो करने होते थे इन द जॉब. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. और अगर हम इस नए तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप जॉब्स के लिए रेडी नहीं हो पाओगे. जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे. इसलिए हमें पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? समझा? सो आई नो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट धीरे धीरे करके यू विल गेट यूज्ड टू दिस. Payal Miss also teaches you in this way. She shows you video and then she asks you lots of questions about it. Yeah? Yes. Yes? She's making you think. Even I'm going to do that. I was already doing it thoda, but now I'll do it pura वैसे. Okay. With that, Amrita, you want to ask your question? Yes, Didi, in group there is written online English class. No, it's not English. It's actually geography. From tomorrow, I will send the message. I'll start sending the message. So I will make sure I'm writing the right subject. All right. All right. Now, without further ado, let's start the class. So welcome. It's Geography Air Pressure Part 2. Before starting, let's do the meditation, the daily routine. So we'll do a very quick 1-minute meditation. Okay. So everyone, sit with your back straight, eyes shut. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now bring your attention to your forehead, above your eyes. Focus there. Focus all your energy above your eyes, in your head. Inhale. Exhale. While inhaling, feel the air going inside and making your body bigger. While exhaling, feel the air going out and contracting your body. When you're ready, rub your palms. Put it on your face, your eyes, and you can open your eyes. All right. Good morning, everyone. Let us begin with the class. So, can I request Shreya to please read the objective? We will be able to explain the Break the word. interrelation between temperature zone and pressure belt. Teacher, what is this? Temperature. Okay. All right. We'll be doing this only today.
So we'll be able to explain interrelation. Interrelation. It's made of two words, inter and relation. Interrelation मतलब दो चीजों में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स एंड योर, हाउ आर यू बोथ रिलेटेड टू ईच अदर, आप दोनों रिलेटेड कैसे हो. यस. सो बिटवीन इंटर रिलेशन किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो टेम्परेचर जोन्स और प्रेशर बेल्ट. नाउ टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट में से एक चीज हमने पहले पढ़ी हुई है लास्ट ईयर, एंड व्हेन आई रिवाइज इट टुडे आपको याद आ जाएगा, बट किसी को अभी याद है? इफ यू रिमेंबर प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड इफ यू रिमेंबर व्हाट टेम्परेचर जोन्स वर. ओके, अर्सिया is Shashwat are raising hand. Okay, yes, Shashwat. Shashwat, would you like to answer? All right, Shashwat is not answering. Anyone else who would like to answer? Yes, Shreya, would you like to answer? It is on globe Yeah, it's on, temperature. हाँ मतलब ग्लोब मतलब क्या, अर्थ पे, राइट. हम Yeah. जहाँ रहते हैं हमारे प्लैनेट से रिलेटेड है, एंड हमने टेम्परेचर जोन्स, अब हम अर्थ पे तो बना नहीं सकते कि चलो पेंसिल लेके अर्थ पे बनाना चालू करते हैं, नॉट पॉसिबल, राइट. इट्स सो बिग, हम एक्चुअल में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं. ओके, राइट, करेक्ट. Arsia, would you like to tell me what were temperature zones? Binda is also. Temperature zones are that there we see the temperature on the globe and understand how much degrees and degree Celsius or degree Fahrenheit was there. Okay, yes. All right, Bindya, one last person to add something. Okay, Amrita is also raising hand. Bindya, first you say. There are frigid zone, temperature zone, temperate zone, torrid zone. Okay, yes, that's right. So there were these three zones that we studied. All right, Amrita, you want to add something? And there are degrees. Okay, yeah, correct. So we'll come to that. Before that, I'll tell you the rules. You are already following these rules. One is participate, that is you are answering my questions. And second part that Shreya did was she asked me some question. She didn't understand what that objective was, so she asked. So very good for participating. Second is you will have to raise your virtual hand to answer. You're already doing that. And you will have to keep yourself on mute if not talking. वो भी आप कर रहे हो. So very good. Just keep in mind these rules. Okay, before we go to temperature zones and air pressure belts, let's recap. What were the two factors? There were two. Okay, this is your hint. That affects air pressure. कौन से two factors थे जो air pressure को affect कर रहे थे? हमने last class में पढ़ा था. Okay, Arsia and Raj raising hand. Yes, Raj, you answer. You have not said anything. Teacher, altitude and temperature. Very good. Altitude and temperature. Okay, who can tell me altitude कैसे affect करता है? Yes, Faisal and Zainab. What, teacher? Altitude कैसे affect करता है air pressure को? Altitude मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ. Air. Altitude मतलब air नहीं होता है. Altitude मतलब होता है height. तो height और air pressure कैसे related है? जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम height पे ऊपर जाएंगे, जितना mountain पे जाएंगे, air pressure decrease होएगा कि increase होएगा? Increase. Are you sure increase होता है जितना हम ऊपर decrease होता है? Remember that mountain के ऊपर थोड़ा सा ही atmosphere बचा था, and because atmosphere थोड़ा सा था, हमने कहा था कि pressure कम पड़ेगा. जितना ज्यादा atmosphere उतना ज्यादा pressure. माउंटेन के ऊपर एटमॉस्फेयर कम हो गया था, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा. व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट टुडे, बिकॉज हम टेम्परेचर के जो जोन्स होते हैं अर्थ पे उसको प्रेशर से रिलेट करेंगे. ऑलराइट, अर्सिया. If there will be more temperature, so the air pressure will be lower.
will be lower. Correct. Very good. So you guys remember. Let's recap. So higher altitude, the lower is the air pressure. जितना आप ऊपर जाओगे, high height पे जाओगे, lower pressure उतना ही कम होएगा. And temperature कैसे related है? जितना ज्यादा आप temperature बढ़ाओगे, air pressure उतना कम होता जाएगा. और अगर ठंडी होगी तो air pressure ज्यादा होगा. गर्मी में क्या होगा? गर्मी में जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म होके वो ऊपर उठ जाएगी. अगर वो ऊपर जाएगी तो pressure कम हो जाएगा. हमेशा ये सोचा करो प्रेशर किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा. अगर कोई चीज को गर्म करेंगे, हवा को गर्म करेंगे तो क्या होगी? वो एक्सपैंड होगी. अगर वो एक्सपैंड होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा. करेक्ट? समझा? कैन समवन रिपीट मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें जो मैंने अभी भी एक्सप्लेनेशन दी, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? Okay, 2 people raising hand. I'll give chance to both. First Amrita and then Arsia. Like we will depend with molecules. If there is summer, if we will do air hot, then it will be expand. Then वो दूर हो जाएंगे. Then it will be means less low pressure. And if it is cold summer, then Cold it will summer, cold winter. Yes, cold Summer winter. का hot ही होता है. It will be contract and it will come. वो पास आ जाएंगे. Then it will be high pressure. More molecules will be there. Perfect, perfect. Amrita has correctly said it. Very good. Arsia, please repeat. If air pressure is depending on the molecules, if there will be cold, so the molecules get compressed, and it will be hot, so the molecules will be very fast expand when we boil something, so the molecules expand there. So that's why the air pressure is depending on the molecules. Okay, वैसे you missed one thing. जब expansion होता है, जब वो दूर दूर गए molecules, तो pressure क्या होगा? अगर कोई चीज दूर जा रही है तो pressure कम होएगा कि increase होएगा कि decrease होएगा? Decrease होएगा. So you forgot to say that line. So when something is expanding, molecules are going far. So the pressure at this point, यहाँ पे molecules पहले 5 थे, अब expand हो गए तो सिर्फ 1 और 2 बचे, बाकी तीनों दूर चले गए. तो pressure क्या हुआ? Pressure decrease हो गया, कम हो गया. जब ठंडी हुई, यहाँ पे पहले तो 5 थे, ठंडी हुई, जो आसपास के और 10 molecules है वो भी यहाँ पर आ गए, तो pressure क्या हुआ? Decrease हो गया. ठीक है? अगर ये clear है सबको, then next topic समझ आएगा. आज का topic इसी पे है, जो अभी अभी हमने explain किया. Understood? Give me thumbs up if this is clear. मिसबा, शिवानी, समझा? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, नहीं तो आज के चैप्टर में प्रॉब्लम होएगी फिर. All right, and I can't see the chat, so it's best if you want, you can say something right now. I'm giving you chance. All right. Okay, let's recall temperature belts now. Someone said someone told me the 3 what do you say, temperature belts also. So can we mark it on the earth? Okay, Shreya wants to go first. Okay, Shreya, tell me first. So I'll draw equator. Okay, equator बीच में होता है, तो मैंने equator किया. सबको दिख रहा है ना equator? The one I've made. कि मैं इसको थोड़ा thick करूँ. रुक जाओ. Yeah, okay. In red color. Yes, look, I'm making it thoda thicker for you, all of you to see. ठीक है? Better? पहले वाला better था. Frigid zone. Okay, पहले tell me near equator कौन सा होगा? Equator पे गर्मी होती है कि ठंडी होती है? पहले तो ये बताओ. Both. Okay, generally, suppose ये मेरा sun है, ये मैंने देखो sun बनाया, दिख रहा है sun? Yeah. ये बड़ा सा sun मैंने बना दिया, ठीक है? This is my sun.
सन से रेज आ रही है, Yes. तो अब बताओ डायरेक्ट आ रही है कि इनडायरेक्ट आ रही है इक्वेटर के पास में? Direct. डायरेक्ट आ रही है, तो हॉट होना चाहिए कि कोल्ड होना चाहिए? Hot. हॉट। तो इस Hot. एरिया में इट इज वेरी हॉट, और Yeah. ये जो हॉट रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? ये हॉट है, Torrid zone. इसको भी कॉल टॉरिड जोन। Torrid. ओके, आर यू श्योर इसको टॉरिड जोन बोलते हैं? Yes. ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर। Red line equator. हाँ, रेड लाइन इज इक्वेटर, बट ये जो पूरा रेड रेड मैंने कलर नहीं किया, इतना पूरा यहाँ पे डिग्रीज भी होते हैं, है ना? इक्वेटर की डिग्री होती है 0 डिग्री, ये होगा 23 डिग्री के आसपास कुछ, ये भी होगा 23 डिग्री साउथ, ये होगा 23 डिग्री नॉर्थ। ओके, अब मैं इसके ऊपर जाती हूँ, यहाँ पे क्या होगा? Temperate zone. Zone. देखो मैंने सर्कल बना दिया है यहाँ पे। पहले बताओ गर्मी और ठंडी बताओ। इक्वेटर जितना गर्मी होगा कि इक्वेटर से कम गर्मी होगा? Equator से कम. इक्वेटर से कम गर्मी होगा, क्योंकि यहाँ पे अब सनलाइट थोड़ा दूर से आ रही है, करेक्ट? Yes. तो इसको हम बोलते हैं, ये होगा 66 डिग्री नॉर्थ। ओके वेट, ये हो गया 66 डिग्री नॉर्थ एंड ये हो गया 66 डिग्री के अराउंड साउथ। South. So this is called as temperate zone. And then top पे क्या होता है? एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे what happens? Frigid zone. Frigid zone. फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट बहुत इनडायरेक्ट आती है, ढंग से नहीं आती है। सो एकदम यहाँ पे हमेशा आइस रहती है, इसलिए पीपल कैन नॉट लिव हियर ऑल्सो, क्योंकि हमेशा 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, हमेशा आइस होता है, तो वी कॉल दिस फ्रिजिड जोन। ठीक है, समझ गया? दिस इज द हॉटेस्ट जोन, टॉरिड जोन, दिस इज टेम्परेट जोन एंड दिस इज फ्रिजिड जोन। परफेक्ट, all of you answered correctly. Let's move forward. Look. So this is equator, ये tropic of Cancer, tropic of Capricorn। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अर्थ सीधा नहीं होता, अर्थ एक्चुअली टिल्टेड होता है, रिमेम्बर? इसलिए यहाँ पे टिल्टेड है ना, एक्चुअल में टिल्टेड Yes. होता है, बट हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम अर्थ को सीधा दिखा देते हैं, जिससे कि हम ज्यादा सोचना नहीं पड़े, अर्थ इज एक्चुअली में टिल्टेड। तो जो पोलर जोन है इसको आप फ्रिजिड जोन भी बोल सकते हो और पोलर जोन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, बट आपको ये याद रखना है कि जो ये फ्रिजिड जोन होता है या पोलर जोन होता है, यहाँ पे इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, देन यू हैव दिस एरिया and this area which is called temperate zone. Then you have this area, this is the hottest part of the earth, this is called as tropical zone or torrid zone. ठीक है, Shreya, you are raising hand, what happened? Have any question? No. Okay, I Amrita didn't and raise Raj? Okay, Amrita, you have a question? Yes. If where there is cold ice come, then there will be how summer season. Okay, so season हमने थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया था chapter 1 में. What happens when earth is like this? Earth is rotating, right? So अगर suppose मैंने yellow pen है, suppose my t-shirt is the sun. Okay, now this is the earth. Right now southern hemisphere is close to the sun. तो यहाँ पे समर होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, तो गर्मी होगी। जब मैं यूं आ जाऊंगी, इस साइड आऊंगी, तो क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, अभी नदर्न हेमिस्फीयर क्लोज है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर होएगा। नाउ योर क्वेश्चन इज, अगर आइस है तो समर कैसे होगा? इट्स रिलेटिव अमृता। तो जब वहां पे विंटर है, जब सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, साउथ पोल की बात करते हैं, ठीक है, तो इस साइड यहाँ पे अभी समर्स है। जब समर्स होंगे तो वहां पे टेम्परेचर सपोज हो सकता है -1 डिग्री, -0 डिग्री, 1 डिग्री, बट जब विंटर्स होंगे तो वहां पे टेम्परेचर कितना जाएगा? -40 डिग्री, -50 डिग्री। समझा? तो वहां का समर इज हमारा विंटर, इट्स ऑल रिलेटिव। हम बट उस जगह की अगर बात करें तो समर में टेम्परेचर उसमें ज्यादा होगा और विंटर में कम होगा। इट्स लाइक दिस। अगर आप माउंटेन्स में जाते हो वेकेशन के लिए, अगर आप इवन इन इफ यू गो इन जून, जब हम सब जगह समर्स होते हैं,
तब माउंटेन्स में क्या होता है, टॉप पे तब वहां पे आइस होती है और वहां पे टेम्परेचर कम होता है. यस, इफ यू गो टू लेह लद्दाख अगर आप जाओगे, विच इज कश्मीर से भी थोड़ा सा ऊपर एंड हाइट्स पे, तो वहां पे विंटर्स में जाने नहीं देते क्योंकि बर्फ की वजह से टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो बंद हो जाता है एरिया. तो वहां पे सिर्फ समर्स में जा सकते हैं और समर्स में भी वहां पे बहुत ठंडी होती है, पर विंटर्स में उस समर से भी बहुत ज्यादा ठंडी होती है. समझा? तो उस जगह के हिसाब से 0 डिग्री समर है और -50 डिग्री विंटर्स है. और हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 35-40 डिग्री हो जाता है, तो हमारे लिए 0 डिग्री विंटर हो गया. ठीक है, तो वो रिलेटिव होता है, उस जगह के हिसाब से हम बात करते हैं. ओके, गुड क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ जो हमने टेम्परेचर जोन स्टडी किए अर्थ के, उसको हम प्रेशर बेल्ट से लिंक करेंगे. नाउ आई एम नॉट गोना टेल यू, यू गोना टेल मी. ओके, सो आई विल जस्ट ड्रॉ व्हाटएवर हमने अभी तक बात की है. 0 डिग्री, ये वाला टॉरिड जोन था 23 डिग्री. 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ. इट्स नॉट एग्जैक्टली 23 डिग्री नहीं, 23 डिग्री कुछ मिनट्स भी है, पर मेरे को याद नहीं है अभी. आप में से किसी को याद है 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ? No, miss. Okay, just wait, I'll tell you. 23 degree 30 minutes north and 23 degree 30 minutes south. So 23 degree, और इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ. डिग्री 30 minutes north, 23 degree 30 minutes south. North. Yes, sir. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट जोन हो गया, फिर ये मेरा टेम्परेट जोन हो गया. टेम्परेट जोन को मैं कैसे मार्क करूँ? ऐसे स्ट्रेट लाइन से करते हैं, चेक्स बना देते हैं. तो क्लास मैं जैसे डिफरेंट तरीके से मार्क कर रही हूँ इन एग्जाम, इन योर नोटबुक इट शुड बी मार्क लाइक दिस ओनली. जैसे यहाँ पे ऐसे स्लैंटिंग लाइन बना दिया, यहाँ पे ऐसे चेक्स बना दिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम. और देन यहाँ पे मैं डॉट्स बना देती हूँ. ठीक है, तो अब सारे अलग अलग हो गए. ठीक है, दिस इज 66 डिग्रीज, राइट? 66 डिग्री 30 minute north 30 minutes and south. south. This is 66 degree 30 minutes. North. This is 90 degrees north and this is 90 degree south. This south. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टॉरिड जोन. देन हमारा आ गया टेम्परेट जोन, ये पूरा, एंड ये वाला भी टेम्परेट जोन हो गया, राइट? एंड देन लास्ट वाला इज योर फ्रिजिड या फिर पोलर जोन. नाउ अगर मेरे को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अब हमने पढ़ा है जब टेम्परेचर ठंडा होता है या गर्म होता है एयर प्रेशर कैसे चेंज होता है. सो अगर इस तरीके से मेरा टेम्परेचर है तो मेरा एयर प्रेशर की भी बेल्ट्स बन जाएंगे डिफरेंट. सो इफ दिस इज माय इक्वेटर, कैन समवन टेल मी यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इक्वेटर के पास में इट्स हॉट. अगर इक्वेटर के पास में हॉट है तो एयर प्रेशर कम होएगा कि ज्यादा होएगा? Less. Air pressure will be less. Correct. You will raise your virtual hand now before answering. Arsia, you're telling? No, that's Shreya that only. Okay, Misbah, you have not said anything today. Misbah, are you there? Unmute करो. Yes. Okay. So अर्थ हमने देखा कि जो इक्वेटर है उसके पास में सबसे हॉट होता है, करेक्ट? तो अगर टेम्परेचर हॉट है तो प्रेशर कम होएगा कि ज्यादा होएगा?
प्रेशर हाँ, अगर गर्मी है तो प्रेशर कम होएगा कि ज्यादा होएगा? थोड़ा ही। गर्मी में क्या होगा? इतना याद करने की चीज नहीं है, दिमाग लगाओ। गर्मी हुई, हॉट हुआ, अगर कोई चीज हॉट होती है तो वो एक्सपैंड होती है। वो रिंग वाला एक्सपेरिमेंट याद है? गर्मी Yes. है तो वो एक्सपैंड होएगा। अगर एक्सपैंड होएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स दूर हो रहे हैं तो इस पॉइंट पे प्रेशर कम होएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वेट कम हो जाएगा, है ना? Yes. तो प्रेशर लेस होएगा। जब ठंडी होगी क्या होगा? जब हम पानी में उस रिंग को डालते थे क्या होता था? वो ठंडी हो जाती थी, वो छोटी हो जाती थी, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उनका वेट ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा तो प्रेशर हाई, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचो। प्रेशर कम होएगा। तो यहाँ पे प्रेशर लेस होएगा, तो दिस इज लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इनके नाम होते हैं बट वो नाम हम बाद में देखेंगे। अब मेरे को बताओ टेम्परेट जोन पे क्या होना चाहिए? हु विल टेल मी? एक यहाँ पे बेल्ट आएगी और एक बेल्ट इधर आएगी। टेम्परेट पे क्या होना चाहिए? अब जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ओके? जो यहाँ पे लो प्रेशर अगर हुआ है, अगर इधर लो प्रेशर हुआ, तो यहाँ वाली जो हवा थी वो किधर गई? वो हवा इस आधी नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी, आधी साउथ पोल की तरफ जाएगी। देन थिंक यहाँ पे क्या होगा? ओके, सो रिया, रिया, Miss, I think there will be so little air. ओके, इधर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे। यहाँ पे एयर ज्यादा होगी कम होगी? लो प्रेशर है तो यहाँ पे तो एयर कम है, यहाँ पे तो डेफिनेटली एयर कम है, बट जो कम हवा है वो किधर गई? ऐसे तो ना हवा गायब हो जाती है, नहीं, वो रहेगी ना, अर्थ पे तो कहीं तो रहेगी। तो वो किधर जाके, मैं आपको बता रही हूँ, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चली गई। तो यहाँ पे और यहाँ पे एयर ज्यादा हो गई। अगर एयर ज्यादा हो गई तो यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी है, बट एयर भी आ गई एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? ओके, अमृता एंड राज, who is answering? Is anyone answering from in between Amrita and Raj? You have your hand raised. It will be high pressure Okay, why high pressure? because if there is cold, it contracts. Then when the hot air will go there, then it We will have be extra air. Correct, correct, very correct. Khushnuma, you wanna answer? High pressure. High pressure, why? Why high pressure? Sirf answer is not important, but reason is important. Okay. Shreya, would you like to tell me why high pressure? Yes, because all the air is going up. Right? Yeah, it is going up and down. मतलब it is going towards the pole. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर हो जाएगा, एंड इट इज थोड़ा सा कोल्डर कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ पे थोड़ा ठंडी होएगा, टेम्परेट जोन में थोड़ा ठंडी होता है कंपेयर टू टॉररेट जोन। सो एयर कॉन्ट्रैक्ट भी होगी, और जो एक्स्ट्रा एयर इक्वेटर से आ रही है वो एक्स्ट्रा एयर भी आ जाएगी। तो एयर के मॉलिक्यूल सडनली कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल बी थोड़ा सा हाई प्रेशर, करेक्ट। And teacher already air, and this also air is going there, that is Yes, high yes. pressure. And can you tell me on the poles what happened? Jayashree, you have not answered till now. अब ये हाथ से हवा थोड़ी और इधर आएगी, and this is already very cold. हमने अभी पढ़ा, ये तो फ्रिजिड जोन है। तो यहाँ क्या होगा जयश्री? हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? Low pressure. Okay, I'm asking Jayashree. Jayashree, Yes, miss. at the poles क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होगा प्रेशर का?
पहले बताओ, यहाँ पे दो चीजें, जो एयर है इक्वेटर से, वो वाली इक्वेटर से एयर इज कमिंग हियर, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी हो गए, एंड यहाँ पे ठंडी होगी कि गर्मी होगी पोल्स पे? कोल्ड। कोल्ड, करेक्ट। तो जब कोल्ड होएगा और एक्स्ट्रा एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? हाई। वेरी हाई, करेक्ट, इट विल बी वेरी हाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर होएगा, बिकॉज ठंडी बहुत है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हो रहा है, एंड जो इक्वेटर से लो प्रेशर हुआ था उसकी वजह से विंड भी, एयर भी उधर आ रही है, तो यहाँ पे वेरी हाई प्रेशर होएगा। इधर भी और इधर भी, यहाँ पे भी वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, साउथ पोल पे भी सेम चीज होगा। ऑल राइट, very good, everyone, you were able to answer all of this. Now let us see actual में how does this, हमने सही guess किया कि गलत guess किया, ठीक है? Question. Okay Arshia, tell me. If the North Pole wind go on the high temperature, so there will be warm, Yes. and Relatively, yes, हाँ. and when their air will be go on equator, so there also get hot, because there will be hot also. Faisal, I'm gonna ask you questions next. हाँ Arshia, sorry. So that and also the equators, and then again go this way, the air will be rotate all around. Perfect, yes, it will be rotating, that's why monsoons भी आते हैं. Perfect, very nicely, very good critical thinking. I can see Arshia is using her brain really nicely. Yes, that is why we get monsoons. ये air हमेशा rotate होती रहती है, it does not stay. जब वहां पे गर्मी होगी वो वापस से एयर नीचे घूम के आती है, that's the reason. यही एयर प्रेशर, क्योंकि लो से हमेशा क्या होता है, एक पानी की बोतल लो, ठीक है, प्लास्टिक की, उसको जब आप प्रेस करोगे तो पानी मूव करेगा, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ और जैसे ही ठंडी आई या गर्मी आई तो टेम्परेचर डिफरेंस होएगा और वो जो एयर है वो वापस लौट के आती है, करेक्ट, air will keep moving, and that is why we get winds also. All right, let's move forward. Teacher, I have one question. Okay, fine, tell me. Teacher, but teacher, you said that in that very top, there will be low pressure like that. Then how did this high pressure? If we will go up in Okay, श्रेया, so यहाँ पे हम ऊपर नहीं जा रहे हैं. अगर आप अर्थ देखो, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है कि यहाँ पे सी नहीं होगा, इधर इस पॉइंट पे सी नहीं होगा ना? तो अगर आप अर्थ को देखते हो तो अर्थ पूरा गोल है, ठीक है, हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, बट जो मैंने बताया था आपको, एक माउंटेन यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे सी हो सकता है, एक माउंटेन इधर भी हो सकता है और सी हो सकता है. सो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इधर जो माउंटेन होगा इक्वेटर पे भी, उस पे भी क्या होगा प्रेशर, उसका जो प्रेशर होगा, श्रेया, नो आई एम टेलिंग यू एंड यू नॉट लुकिंग, इस इक्वेटर पे जो मेरा माउंटेन है यहाँ पे मेरा प्रेशर कैसा था, लो. जो मेरा माउंटेन इधर है, ठीक है, जो 66 डिग्री के आसपास है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इस वाले माउंटेन के ऊपर थोड़ा लो होगा और इसके ऊपर हाई होगा. समझा? मैं ऑल्टीट्यूड अलग है और अर्थ अलग है, समझ रहे हो? अर्थ तो क्या है, गोल है, एक सरफेस है, तो यहाँ पे भी माउंटेन्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स हो सकते हैं. हम हमेशा कंपेयर सेम चीजों को करेंगे. क्या आप एक एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, दोनों डिफरेंट फ्रूट है. आप एक एप्पल को दूसरे एप्पल से कंपेयर करके बोल सकते हो कि हाँ ये वाला ज्यादा स्वीट है, ये वाला ज्यादा टेस्टी है. वैसे ही आप सेम हाइट की बात करो, आप हाइट से कंफ्यूज मत हो. ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है हम अर्थ पे ऊपर जा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे भी सी लेवल और यहाँ पे भी सी लेवल सेम ही है. अगर आपको कंपेयर करना है, यू कंपेयर द माउंटेन्स.
जिनकी सेम हाइट है। अगर यहाँ पे 3000 मीटर की हाइट है तो यहाँ पे भी 3000 मीटर हाइट है। अगर अब 3000 मीटर हाइट पे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, समझा? क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, समझा? कंपेयर हम हमेशा सेम चीजों को करेंगे, हम डिफरेंट चीजों को कंपेयर नहीं करेंगे। बट वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस। रिया, you have a question as well? Miss, you teach us in 6th standard that from torrid zone to fridge zone the hot air goes, and from fridge zone to torrid zone the cold air comes, so the temperature become little hot and cold. In Yes. winter there is little cold. yes, correct. हम परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर रिकैपिंग दैट रिया। हम उसी को अब प्रेशर से भी रिलेट कर रहे हैं। उस टाइम पे मैंने सिर्फ टेम्परेचर का बताया था। नाउ वो एयर मूव क्यों हो रही थी, हॉट एयर कोल्ड एयर के पास क्यों जा रही थी और कोल्ड एयर हॉट एयर के पास क्यों आ रही थी? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो रहा था। उस समय मैंने आपको प्रेशर वर्ड नहीं बताया था, मैं अब बता रही हूँ। बिकॉज ऑफ प्रेशर वो हॉट से कोल्ड जा रही थी और कोल्ड से हॉट आ रही थी, समझा? जस्ट बिकॉज टेम्परेचर की वजह से कभी भी आपका मूवमेंट नहीं होता है, टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है प्रेशर की वजह से, समझा रिया? वो प्रेशर की वजह से मूव कर रही थी। और टेम्परेचर क्योंकि प्रेशर को अफेक्ट करता है तो हमें लग रहा था टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, बट नहीं, वो एक्चुअली में प्रेशर की वजह से है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लुक, हमने बोला था इक्वेटर के पास में लो प्रेशर बेल्ट है हमारे डायग्राम में, और एक्चुअल में लो प्रेशर ही है, देखा? तो हमने ये सही बोला। लुक, हमने लो प्रेशर इधर बोला, फिर हमने हाई बोला, यहाँ पे हमने वेरी हाई बोला। अब अगर मैं इधर देखूं तो दिस इज लो प्रेशर, देन इट इज हाई प्रेशर, एंड देन एकदम टॉप पे वापस से हाई प्रेशर है। एक एक्स्ट्रा बेल्ट होता है जो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, हमने इसके बारे में नहीं डिस्कस किया था, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। ओके, सो नाउ लिसन एवरीवन ऑन म्यूट। श्रेया प्लीज ऑन म्यूट। नाउ ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनना। The sun rays can be perpendicular between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, so the temperature is high. ये लो इक्वेटर वाली बेल्ट की बात हो रही है। So this is my Earth, ये इक्वेटर है, तो ये वाला जो बेल्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। So temperature of this region is high, hence air gets heated, air गर्म हो जाती है और expand हो जाती है and becomes lighter and moves towards the sky, light होके sky की तरफ जाती है। As this process operates continuously, a low pressure belt gets formed in the central part of this region between 5 degree north and 5 degree south. So ये है 5 degree north and ये है 5 degree south। क्योंकि ये गर्म रहता है तो एयर हमेशा हॉट हो जाती है और एक्सपैंड होती रहती है हमेशा, तो इस वजह से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो छोटा सा जो बेल्ट है, ये बेल्ट जैसा है, बेल्ट इसी शेप का होता है, तो यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। मूविंग ऑन, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट। सो अगर ये मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री, तो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। Okay, everyone on mute, please. Someone is not on mute. Keep yourself on mute. The heated air becomes lighter and starts ascending, and after reaching higher altitude, move towards the polar region, that is towards north and south pole. So हमने देखा था इक्वेटर के पास जो एयर थी वो ऊपर जा रही है। अब ऊपर जब वो चली गई, ऊपर जाने के बाद में वो मूव करती है टुवर्ड्स, वो मूव किधर की? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। इक्वेटर के पास गर्मी है तो इट वेंट अप, ऊपर जाने के बाद वो वहां पे ऊपर नहीं रहती है, वो मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड आधी जाती है टुवर्ड्स साउथ पोल। हमने ये पढ़ा था, हमने ये सोचा भी था। इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू लो टेम्परेचर एट हाई अल्टीट्यूड द एयर कूल्स डाउन एंड बिकम्स हैवी। अब जितना आप ऊपर जाओगे ठंडी बढ़ती है, तो उस वजह से एयर क्या होती है? कूल डाउन हो जाती है और नीचे आ जाती है और हैवी हो जाती है। और
इसकी वजह से 25 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में हमारा हाई प्रेशर जनरेट होता है. तो दिस इज 35 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ. दिस इज 25 डिग्री साउथ एंड दिस इज 35 डिग्री साउथ. तो इन दोनों जगह पे ये जो दो बेल्ट्स क्रिएट होती हैं और ये हाई प्रेशर की होती है. हमने भी यही सीखा था जब हम गेस कर रहे थे कि कहां पर क्या होगा. सी वन मोर बैक. ये हमने भी यहाँ पे हाई प्रेशर बोला था, जो एयर है वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे क्योंकि ठंडी है तो उसके से कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा. हमने ऐसे ही बोला था, तो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है. ठीक है. Now very interesting fact here, this leads to formation of high pressure belts. The air is dry, hence this region does not get rainfall. Consequently, most of the hot deserts on earth are found in these regions. Now this is very important class. ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एयर जो होता है वो ड्राई होता है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है. अगर मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा, रेन नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, और बारिश नहीं आएगी तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे डेजर्ट होता है. सो इंडिया में डेजर्ट कौन से स्टेट में है? Who will answer? राजस्थान. ओके, सो राजस्थान में डेजर्ट है. इफ यू गो राजस्थान के एकदम वेस्ट साइड में, वहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा. तो हम गेस कर सकते हैं कि जो, और इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो मेरा जो राजस्थान होगा वो 35 डिग्री और 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हवा जो होती है वो ड्राई होती है, तो अगर ड्राई होगी, सूखी होगी तो बारिश नहीं आ पाएगी, और बारिश नहीं आएगी तो डेजर्ट बन जाएगा. सो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेरे डेजर्ट है वो इन्हीं दोनों प्रेशर बेल्ट के बीच में होंगे, 25 डिग्री से 35 डिग्री. देन सहारा डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, जो अफ्रीका में, वो भी यहीं लाई करता है. ठीक है. एंड नीचे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे या साउथ अफ्रीका जाओगे या साउथ अमेरिका जाओगे तो आपको और डेजर्ट मिलेंगे, वो भी इधर ही लाई करेंगे, वो सदर्न हेमिस्फेयर में होंगे. ठीक है. सो दिस इज वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस. नाउ अब ये yes Arsia, tell me. I have question in the back. All the countries are in the middle of the equator. No, that's spread. वो पूरा spread हो रखा है. Okay, I will show you. You wanna see? I want to see. Wait, I'll share. Look at this. Can you see this, Arsia? Yes. Now this is equator. Equator के आसपास कौन सी कंट्रीज आ रही है? यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, ये तो पूरा हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट. यहाँ पे यू सी दिस इज अफ्रीका. जो मेरा नॉर्थ अमेरिका है वो इक्वेटर के पास नहीं है. ये मेरा ग्रीनलैंड है जो बहुत नॉर्थ पोल के क्लोज है. जो यूरोप है, यूके, ये अगेन बहुत दूर है इक्वेटर से. नाउ इफ यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, दैट इज वेरी फार. दिस इज साउथ अमेरिका. अगर इसको थोड़ा उल्टा रोटेट कर दूं तो हमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी दिखेगा. लेट मी फाइंड अ मैप जिसमें ग्लोब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया दिखा रखा है. लिखते हैं. Alright. So if we look it in the map, ये देखो. So if you see, ये हमारा इंडिया है. ये वाला जो कंट्री दिख रहा है, that is India, and ये अर्थ, ये इक्वेटर है. इस इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है. करेक्ट. और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है. साउथ पोल में दिस इज मेरा एंटार्क्टिका, एंड इधर विच इज वेरी फार, यहाँ पे मेरी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है. यहाँ पे आर्टिक सर्कल में मेरा
रशिया आ गया, इधर रशिया, इधर सम पार्ट ऑफ यूरोप आ गया, यूरोपियन कंट्रीज आ गए, यहाँ पे मेरे यूके और कनाडा आ गया, ठीक है। तो कनाडा इफ यू गो, वहां पे बहुत ठंडी होती है क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत दूर है। इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया में भी ठंडी होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी फार फ्रॉम इक्वेटर। And that is why people living in Canada, Europe, Australia, they have white skin color. Why do they have white? Because वहाँ पे sunlight कम आती है। अगर sunlight कम आती है तो उनको अपनी skin को protect नहीं करना पड़ता है, तो इस वजह से जो melanin होता है, वो melanin का जो color होता है वो नहीं होता उनके skin में। But जो भी लोग इक्वेटर के पास रहते हैं उनको sun से protection चाहिए होता है, इसलिए उनका स्किन कलर भी डार्क होता है। वो हमारी जो स्किन कलर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से। समझा? Yes. Thank you. वेलकम। चलो लेट्स फिनिश आवर क्लास। ओके, नाउ लुक एट दिस एवरीवन। हमने 3 बेल्ट्स डिस्कस किए थे जब हम बनाए थे। हमने एक लो प्रेशर किया था, एक हाई प्रेशर किया था और एक वेरी हाई प्रेशर किया था। बट जो हाई प्रेशर और वेरी हाई प्रेशर है ना, इसके बीच में एक लो प्रेशर बेल्ट होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर और ये वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में एक सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट बना होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो लेट्स सी कि ये क्यों बना हुआ था, ये क्यों बनता है, ठीक है। ओके, लेट्स रीड क्या लिखा है। ड्यू टू अर्थ्स कर्वेचर, the area between two parallels get reduced as we move towards the poles. This results in lesser friction of air with the earth surface. जो अर्थ का कर्वेचर है, अर्थ जो राउंड है, उस राउंड की वजह से जो मेरा वेरी हाई प्रेशर और हाई प्रेशर है, उस दोनों के बीच में एरिया कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से एयर में जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स कम हो गए। जब कम एरिया है ना, एयर इन दिस रीजन इज थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस्ड फ्रिक्शन एंड आल्सो बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशनल मोशन। अर्थ रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे टॉप पे और इधर जो मेरा, किसी ने वो बेब्लेड से खेला है कभी, या फिर आप वो जो ऐसे करके वो कौन क्या होता है मिसबा, उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे उस पे थ्रेड बांध देते हो और फिर यूं खींचते हो, तो टॉप होता है ना, Beyblade. रोटेट करता है। हाँ, तो इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना, मे बी एक ऐसा कोई बड़ा सा वेसल लेना, किचन में जाके मे बी कढ़ाई जैसा कुछ, और वो जो आपका टॉप है ना उसको बीच में छोड़ना, ठीक है। जो आपका बीच का जो पार्ट है उसमें छोड़ना और फिर उसको गोल घुमा देना, जो कढ़ाई है उसको गोल घुमा देना। तो आप क्या देखोगे, वो जो टॉप है वो बीच में घूमता रहेगा। बट अगर आप उसको साइड में छोड़ोगे, कढ़ाई अगर बड़ी है साइड में छोड़ोगे और फिर घुमाओगे उसको, तो क्या होगा, क्या टॉप बीच में रहेगा कि कढ़ाई से बाहर चला जाएगा? कढ़ाई से बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको घुमा दिया और वो वहां पे अटका नहीं रहा। वैसे ही अर्थ क्या है, अर्थ भी गोल है, उसके ऊपर हवा है और अर्थ रोटेट भी कर रही है। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, जो ऊपर एयर होती है वो बाहर की तरफ जाती है, एंड क्योंकि वो एयर बाहर की तरफ जा रही है, बट अर्थ की ग्रेविटी जाने नहीं देती, वो अलग बात है, बट वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो बाहर कहाँ पे है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करती है। उसकी वजह से वहां पे एक छोटा सा लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। समझा? 2 हाई प्रेशर के बीच में जगह कम है और अर्थ ऐसे रोटेट भी कर रही है। बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है, मेरी जो एयर इस रीजन में वो बाहर की तरफ थ्रोन होती है, क्योंकि बाहर की तरफ जा रही है तो एयर कम हो रही है। और अगर एयर कम होएगा, ऐसे एक्सपैंड होएगा, जाएगा दूर, तो वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। समझा सबको? किसी को क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? एनी क्वेश्चंस? सो यहाँ पे एक और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इस लो प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है।
और ये कौन से डिग्रीज में होता है? 55 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में होता है। एंड देन लास्ट में जो हमने पढ़ा था पोलर रीजन पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, वो वाला प्रेशर बेल्ट होता है। लेट्स सी, इन बोथ पोलर रीजन द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। जब समर टाइम आता है वो मे बी -0, -5 डिग्री, -10 डिग्री होता होगा। जब विंटर्स आता है तो -100 डिग्रीज, -18 डिग्रीज इतना हो जाता है, ठीक है। Hence here the air is cold. As a result, high pressure belts get formed. These are called polar high pressure belt. They generally occupy the area between 80 and 90 degree in both the hemisphere. ठीक है, क्योंकि वहां पे ठंडी रहती है हमेशा, तो वहां पे हमेशा एक हाई प्रेशर बेल्ट मेंटेन रहता है। So everyone, make sure you are drawing this diagram in your notebook. very important, you should remember the names. जैसे आपको याद था ये टॉरिड जोन है, ये टेम्परेट है, ये फ्रिजिड जोन है, एंड इनका आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद था। वैसे ही आपको ये लैटिट्यूड सॉरी आपके जो लॉन्जिट्यूड्स है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको इनका नेम्स याद रखना पड़ेगा। दिस इज पोलर हाई प्रेशर, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर, दिस इज मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर एंड दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर। एंड आपको ये डिग्रीज याद रखने पड़ेंगे। फिर 5 डिग्री से 5 डिग्री तक, 25 से 35, 55 से 65 एंड ये वाला 80 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस विथ यू। मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग दिस इन योर नोटबुक एंड यू आर राइटिंग। जो भी अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, you need to write that and you need to draw this you can do after your 11:30 वाला क्लास। 11:30 क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में करके send it on the homework and doubt group. Okay. Got it? So with this I'm ending the class for today. If you don't have any questions, then you can leave. If you have any questions, you can stay. I will answer. Bye. 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 Bye, Miss. Bye bye. Bye. Yes, Abhishek. Teacher, today you take a test? नहीं अभिषेक, सारे टेस्ट खत्म हो गए ना, सब टेस्ट देते थे। लास्ट टू लास्ट वीक में मैथ्स और इंग्लिश हुआ था, फिर मैंने आपका साइंस और ज्योग्राफी लिया था जाने से पहले, फिर पायल मिस ने आपका हिस्ट्री और सिविक्स का लिया था, तो हो गए सारे सब्जेक्ट्स। Miss, you are not telling अब कभी the date टेस्ट of नहीं होगा? submitting the paper. अभिषेक हाफ ईयरली टेस्ट नहीं होगा, अब आपके फाइनल टेस्ट होंगे ना, और यूनिट 3 के टेस्ट होंगे। अभी यूनिट 3 के टेस्ट होंगे, कब होंगे? नवंबर में होंगे। ओके टीचर। या यस अर्सिया। Miss, you don't tell the date of submitting the paper. अर्सिया अभी आप कम बैक ना, अभी आई टॉक टू अदर टीचर्स एंड जैसे आपके अक्टूबर के वर्कशीट्स रेडी हो जाएंगे तब आप सबमिट भी कर देना और अक्टूबर के लिए भी जाना, ठीक है। Okay. Yes, Amrita and Raj, and then Misbah. Didi, today is drama meeting, na? Yes, today you have drama. There is 3:30 to 5:30. Okay, I don't know the timing. You'll have to check. Yes. एक बार group पे पूछ लो. Then there is not my mother phone, there is my father phone. I will do in that, but my father चलेगा. go to job by 4:30 na, but the meeting is finishing at 5:30. राज के पास कोई फोन नहीं है जिसमें चलेगा 4:30 के बाद में. That is old na, then उसमें Zoom download नहीं हो सकता है and we cannot do Okay. meeting in that. I will try to join in other phone, my charges phone. या ट्राई फ्रॉम दैट फोन, अगर उस फोन से हो Okay. जाता है आफ्टर 4:30, ठीक है। Yeah. अमृता हाँ ठीक है, यू ट्राई फ्रॉम दैट। वो लिंक है ना दूसरे फोन में डाल देना, मैसेज कर Yes. देना। ओके यस मिसबा। Mansi Didi, in 10:30 class, my mother Arbia's school to then when I come. As in, can you say that again? At 10, I think Arbia's class isn't it at 11? Yeah, but my mother is take phone and going. Today is meeting.
in Acha, great. her school. Acha, in her school there's meeting and she's going. Okay, it's okay. Then don't attend today. Just ask someone after your mother comes back कि आज क्या पढ़ाया पायल मिस ने. Take notes, read from the notes, and अगर questions कुछ समझ नहीं आए तो call पायल मिस and talk to her. ठीक है? After your mother comes back. Okay. And एक बात बताओ मिसबा, अगर स्कूल में मीटिंग है तो आपकी मम्मा कोई और फोन नहीं लेके जा सकती है क्या? वो छोटा वाला जो फोन नहीं आते वो नहीं है? वो तो अब्बू लेके जाते मेरे. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. जब फिर आ जाए ना आपकी मम्मा तब उनके फोन से देख लेना क्या पढ़ाया था और पायल मिस को कॉल करके पूछ लेना. ठीक है? ओके बाय. Bye. ओके. You said Payal miss. You said Payal. Yeah, I'll tell Payal miss. Okay, thank you. Welcome. Khushnuma, you have anything to say? Question? No. Okay, then bye bye.